نہیں آ رہی۔ خالہ جان اندر آ جائیں۔ انہوں نے کہا تم جاؤ، جا کے سو جاؤ، میں آ رہی ہوں۔ تو میں جا کر سو گئی۔ تھوڑی دیر بعد میری آنکھ کھلی تو میں دیکھا وہ میرے ساتھ ابھی تک نہیں آ کر سوئی۔ تو میں پھر باہر گئی تو میں نے دیکھا کہ خالہ جان ادھر ادھر ٹہل رہی ہیں، لیکن میں نے ان کے پیچھے دیکھا کہ ایک کونے میں اتنا لمبا اور چوڑا سایہ کھڑا تھا۔ میں اس کو دیکھ کر سوچنے لگی کہ شاید یہ اندھیرا ہو، لیکن وہ ہل جل رہا تھا۔ میں نے اس کو دیکھا، خالہ جان کو وہ دیکھ ہی جا رہا تھا، گھور رہا تھا۔ میں نے خالہ جان کو زور سے آواز دی۔ میں نے کہا خالہ جان آپ کے پیچھے۔ انہوں نے کہا کہ کیا؟ تو انہوں نے جب پیچھے دیکھا تو وہ سایہ وہاں پر نہیں تھا۔ خالہ جان میرے ساتھ اندر آ کر سو گئی۔ جب وہ میرے ساتھ سوئی تو ان کے پاس سے چمیلی کے پھولوں کی تیز تیز خوشبو آ رہی تھی۔ مجھے بہت تیز بخار ہو گیا۔ میں پوری رات نہیں سوئی، میں ڈرتی رہی۔ اگلی صبح جب ہم سب فیملی بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے تب میری خالہ جان اوپر بیڈ پر بیٹھی تھی، ہم سارے نیچے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ تقریباً شام کے 5 بج رہے تھے۔ پہلے تو خالہ جان ہمارے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، پھر اچانک ایک دم چپ ہو گئی۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا خالہ جان، آپ کو پانی چاہیے؟ تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے ان کو پانی دیا تو انہوں نے پانی جیسے ہی پیا وہ بیڈ پر گر گئی۔ ان کے منہ سے پانی باہر آنے لگا۔ ایک دم سے ان کے پورے منہ پر نسیں نظر آنے لگی، پورا منہ لال ہو گیا۔ ان کے ہاتھ پاؤں مڑنے لگ گئے۔ ایک دم سے عجیب عجیب سی آوازیں ان کے منہ سے آنے لگی جیسے کسی مرد کی ہو۔ پھر ایک دم وہ بیڈ پر ادھر ادھر مڑنے لگی تو ان کا پیٹ اوپر کی طرف نکل آیا، ہاتھ ان کے نیچے اور پاؤں بھی، اور پیٹ اوپر کی طرف۔ عجیب عجیب سی آوازیں آنے لگی۔ ہم سب ایک دم ڈر گئے۔ میری نانو بہت رونے لگ گئی کہ میری بیٹی کو کیا ہو گیا۔ اب گھر پہ گاڑی بھی نہیں تھی تو میں نے بھاگ کر رکشہ بلایا۔ میری خالہ نے اور میری نانو کی بہن نے ان کو اٹھایا، لیکن وہ اٹھائی نہیں جا رہی تھی۔ ان کا وزن بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ دونوں نے بہت مشکل سے اٹھایا، پھر رکشے پر ڈالا، پھر ہاسپٹل لے کر گئے۔ ان کو ہاسپٹل بیڈ پر لٹایا، ڈاکٹر نے ڈرپ لگائی تو وہ زور زور سے چیخنے لگ گئی۔ زبردستی نرسوں نے پکڑ کر ڈرپ لگائی تو پھر ان کی آواز پورے ہاسپٹل میں گونج رہی تھی۔ میں باہر بیٹھی تھی، 2 انجان عورتیں میرے پاس آ کر بیٹھی اور انہوں نے کہا یہ کام ڈاکٹر کا نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ اس کے اندر جنات ہے تو اس کو کسی بابا کے پاس لے کر جاؤ، دم وغیرہ کرواؤ۔ تو انہوں نے بھی ہمیں کسی جگہ کا بتایا، اس جگہ پر اس کو لے کر جاؤ۔ اس نے کہا کہ میری بچی کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا تھا تو ہم نے اس کو دم کروایا، تو اس کو بھی وہیں لے کر جاؤ۔ میں نے اپنی نانوں کو بتائی یہ بات، پھر وہ میری خالہ زور زور سے چیخ رہی تھی۔ بڑی خالہ نے کہا کہ ڈاکٹر اس کو کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا ہم نے جو کرنا تھا ہم نے سب کیا، اب آپ ان کو گھر لے جائیں۔ تو میری بڑی خالہ غصے میں بولی ایسے کیسے لے جائیں، آپ کا کام بنتا ہے ان کو دیکھنا۔ ڈاکٹر نے کہا ہمارے بس کا کام نہیں ہے، آپ لے جاؤ۔ پھر ہم خالہ کو لے کر گھر آئے۔ گھر آنے کے بعد کچھ دیر خالہ آرام سے بیڈ پر لیٹی رہی، اس کے بعد وہ زور زور سے چیخنے لگی، پھر ایک دم چپ ہو گئی۔ ان کی سانسیں بھی نہیں آ رہی تھی اور دھڑکن کی آواز بھی نہیں سنائی دے رہی تھی۔ ہمیں لگا کہ شاید خالہ اب ہماری بیچ نہیں رہی، تو میری نانو زور زور سے رونے لگی۔ ہم سب رونے لگ گئے۔ تو میری سب سے چھوٹی خالہ نے ان کو سانس دی تو ایک دم ان کی سانس میں سانس آئی۔ اب ان کی طبیعت پہلے سے زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ تو میری نانو نے کہا کہ یہ بہتر ہے کہ ان کو دم وغیرہ کروائیں۔ میری بڑی خالہ نے کال کر کے میری چھوٹی خالہ کے ہسبینڈ کو بولا کہ گاڑی بھجواؤ، اس کی بہت طبیعت خراب ہے۔ تو انہوں نے گاڑی بھیجی۔ ان کا بھانجا گاڑی لے کر آیا تو ہم نے ان کو گاڑی میں ڈالا۔ وہ آرام سے چپ ہو کر بیٹھی رہی۔ پھر اچانک راستے میں بچوں کی طرح حرکتیں کرنے لگی، تالیاں بجانے لگ گئیں، چھوٹے بچوں کی طرح ہنسنے لگ گئیں، کبھی رونے لگے۔ پھر میری بڑی خالہ اور نانو جو بھی بات کر رہی تھی تو وہ بار بار ہنسنے لگے، ان کی نقلیں اتارنے لگی۔ پھر انہوں نے جو گاڑی چلا رہا تھا
उसको कहा कि गाड़ी रोको, नहीं तो मैं तुम लोगों का एक्सीडेंट करवा दूंगी। उसने डर के कहा 1 मिनट मैं गाड़ी रोकता हूँ। तो बड़ी खाला ने कहा कि नहीं नहीं, गाड़ी नहीं रोकनी, जल्दी चलो। मेरी छोटी खाला ने कहा कि गाड़ी नहीं रोकी तो मैं तुम लोगों का बहुत बुरा एक्सीडेंट करवाऊंगी। फिर वो जोर जोर से हंसने लग गए। मेरी बड़ी खाला ने एक काले दुपट्टे के साथ उनके मुंह को ढककर उनका सर अपनी गोद में रख लिया। तो मेरी छोटी खाला कहने लग गई गाड़ी रोको। एकदम जब गाड़ी थोड़ी सी आगे गई तो गाड़ी आगे से उठ गई। फिर वो ड्राइवर बहुत डर गया। जब बहुत डर गए फिर वो हंसने लग गए। उसने कहा कि अभी तो गाड़ी उठाई है, मगर तुम लोगों ने गाड़ी ना रोकी तो तुम लोगों का एक्सीडेंट होगा। ये बात अभी की थी कि आगे से एक बाइक आया। वो सीधा आकर गाड़ी में लग गया। उस बाइक पे एक औरत, एक मर्द और एक छोटा बच्चा बैठा था। उन्होंने बिल्कुल सफेद सूट पहने थे। उनके सूट खून से लथपथ हो गए। तो ड्राइवर ने गाड़ी रोक कर कहा तुम लोग ठीक तो हो ना? तो उन्होंने कहा कि हम ठीक है। वो कुछ कहे बगैर ही चले गए। अभी मेरी छोटी खाला को इस बारे में कुछ नहीं पता था कि बाहर एक्सीडेंट हुआ है। किसी ने कोई बात भी नहीं की उनके सामने। उनका मुंह कपड़े से ढका हुआ था। उन्होंने देखा भी नहीं था, फिर भी वो जोर जोर से रोने लग गई। कहने लगी कि मुझे बाहर उतारो, जिनका अभी एक्सीडेंट हुआ है मैंने उनका खून पीना है। सब बहुत डर गए। सबने कहा कि हमने तो इसके सामने कोई बात भी नहीं की, तो फिर भी इसको कैसे पता चला? वो मेरी बड़ी खाला का नाम लेकर कहने लगे कि मुझे बाहर उतारो, मैंने इनका खून पीना है। तो मेरी बड़ी खाला ने जबरदस्ती पकड़कर गाड़ी में बिठाया। फिर वो अपने हाथ पे काटने लगी। उनके हाथ पर किनोरा लगा हुआ था। उतारने की कोशिश करने लगी। मेरी बड़ी खाला ने हाथ पकड़ लिया। फिर पीर साहब के पास गए। उनके पास जाकर बैठे तो मेरी छोटी खाला ने कहा ये कोई पीर नहीं है, ये सबको बेवकूफ बनाता है। वो हंसने लगी जोर जोर से। तो पीर सच में डर गया। उसने कहा कि इसको ले जाओ। तो मेरी नानू ने कहा कि चलो यहाँ से एक और पीर है, इनके पास चलते हैं। फिर उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की तो थोड़ी देर में पीर के पास पहुंचे तो वहां एक आदमी खेती कर रहा था। उसने छोटा सा पजामा पहना था। उसकी टांगें नजर आ रही थी। मेरी खाला गुस्से में बोली इसको मेरी आंखों से दूर ले जाओ, इसको शर्म नहीं आती मेरी बीवी के सामने ऐसे खड़ा छोटा पजामा पहनकर, इसको लेके जाओ नहीं तो इसको मार दूंगा। मेरी खाला मर्द की आवाज में बोली। मेरी नानो लोग सब बहुत डर गए। फिर अंदर से एक पीर साहब आए। उन्होंने कहा इस आदमी को जाने के लिए, तो वो चला गया। फिर पापा आके बैठे। उन्होंने कहा कि इसको मेरे पास लेकर आओ। तो मेरी खाला ने कहा कि मैंने नहीं जाना इसके पास। रोने लगी, कहती हैं मुझे घर ले जाओ। फिर पीर साहब ने कहा तुम सब इससे दूर हो जाओ। उन्होंने मेरी छोटी खाला को बालों से पकड़ा और नीचे जमीन पर बिठाया। वो कहने लगा कि तुम कौन हो, मुझे बताओ। मेरी खाला जोर जोर से रोने लग गई। फिर एकदम हंसने लगी। उसने कहा कि कुछ नहीं बताऊंगा कि मैं कौन हूं। तो बाबा ने पानी गिराया उनके ऊपर दम वाला। वो चीखने लगी। उन्होंने कहा अच्छा मैं बताता हूं कि मैं कौन हूं। मेरा नाम अली हैदर है और इसके साथ रहना चाहता हूं। ये बहुत नेक पाकीज़ा है, मैं उसको नहीं छोड़ सकता। पीर साहब ने कहा कि तुम इसको कहाँ मिले? उस जिन ने कहा कि मैं काले इल्म के जरिए आया हूँ, मुझे इसकी सोकर ने भेजा कि इसको मार दो। तो जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा ये 5 वक्त की नमाजी है, पाक साफ लड़की है, तो मुझे इससे प्यार हो गया। मैं इसको नहीं छोड़ सकता, मैं हर टाइम इसके साथ हूँ और जो इसको कुछ कहेगा मैं उसको मार दूंगा। तो पीर साहब ने कहा कि छोड़ दो इसको। तो इसने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। तो फिर पीर साहब ने एक स्टिक के साथ मेरी खाला को मारा। तो जिन जोर से रोने लगा, कहने लगा मुझे इससे अलग ना करो, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। वो पीर साहब के आगे हाथ जोड़ने लगा। मैं इसको नहीं छोड़ सकता, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, अब मैं इसके साथ ही रहूंगा। तो पीर साहब ने फिर स्टिक मारी और कहा तुम्हें तुम्हारे पैगंबर सलमान अलैहिस्सलाम की कसम कि तुम इसके जिस्म से निकलो। तब थोड़ी देर बाद मेरी खाला भी होश हो गई। फिर थोड़ी देर पर होश आई तो उनको कुछ याद नहीं था। पीर साहब ने उनके गले में एक तावीज़ डाला। उसके बाद वो ठीक हो गई। लेकिन आज भी जब वो अकेली होती हैं
या बहुत परेशान होती हैं, वो रोती हैं, तो वो जिन फिर से हाजिर होता है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। मैं आपको अपनी ज़िंदगी के और भी वाक़यात बताऊंगी, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा वाक़या था, इसलिए मैंने ये आपको पहले बताया। अल्लाह हाफिज़। तो बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। दोस्तों, अगर आप मेरी स्टोरी अब तक सुन रहे हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी और स्टोरीज आपको सुनने में मिलें और मेरी स्टोरी की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहा करें, और आपका भाई ऐसे मोटिवेट रहे और ऐसी स्टोरीज बनाता रहे। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मेरा नाम राशिद तनोली है। पिछले 5 साल से सऊदी अरब के शहर रियाद में मुकीम हूँ। पाकिस्तान से आज़ाद वीज़े पर यहाँ आया और इब्तिदार में एक वर्कशॉप में अपने कफील के साथ काम किया। वक्त गुजरता गया, 13 महीने तक सब ठीक रहा, मगर कफील का रवैया बदलने लगा। न वक्त पर तनख्वाह, न खाने का इंतज़ाम, जैसे मैं कैदी बन गया हूँ। हालात ख़राब थे, घर का खर्च भी मजबूरी में चलाना था। बिलाखिर मैंने हिम्मत की, काम छोड़ा और रियाद में अपने भाई के पास आ गया। पहले अलखर्ज में था और जो रियाद से करीब है। रियाद में मेरे दिन बेरोजगारी और मायूसी में गुजरने लगे। सिग्नल्स पर खड़े होकर काम की तलाश करता, कभी दिहाड़ी मिलती, कभी खाली हाथ। ऐसे में 4 महीने गुजर गए। फिर अकामा ख़त्म हो गया और यहाँ मैं गैर कानूनी हैसियत में आ गया। न पाकिस्तान वापस जा सकता था, न काम मिल रहा था। फिर एक दिन एक कॉल आई। मेरा दोस्त आसिफ खान था। कहने लगा, एक जगह काम है, अकामा की ज़रूरत नहीं। ये जगह रियाद से 360 किलोमीटर दूर एक सुनसान रेगिस्तान इलाका था। काम था खजूर के फार्म में माली का। मैंने भाई से मशवरा किया, कुछ पैसे लिए और रवाना हुआ अल-कसीम की तरफ। आसिफ मुझे लेने आया और अगले दिन मुझे एक सऊदी मालिक के साथ रवाना किया। मेरी नई रिहाइश गाह फार्म से 100 किलोमीटर दूर थी। फार्म बहुत बड़ा था, 5000 से जायद दरख्त, और मैं था बिल्कुल अकेला। वक्त का पहिया चलता रहा, दिन रात काम, तन्हाई और खामोशी। फिर एक शाम जब मैं वॉल से पानी देकर वापस आ रहा था, कुछ अजीब सा हुआ। मुझे कुछ फासले पर एक सफेद कपड़े में मलबूस शख्स दिखाई दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रहा था। जैसे जैसे वो करीब आता, मेरा जिस्म बोझल होता जा रहा था, जैसे कोई मुझे जमीन से बांध रहा हो। मेरे करीब आकर सलाम करता है, नाम बताता है, अब्दुल्ला। कहता है वो करीब के गांव से है, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। मैंने शुक्रिया अदा किया और इसे खाने की दावत दी। वो मेरे साथ कमरे में आया। बातों बातों में दोस्ती हो गई। फिर रोज मगरिब के वक्त आता, मजे के खाने लाता, नमाज पढ़ता और चला जाता। 3 महीने यूं गुजर गए। फिर एक दिन राशन खत्म होने लगा। मैंने सऊदी को कॉल की, नंबर बंद। दिल में घबराहट होने लगी। उधर अब्दुल्ला भी गायब था कई दिनों से। अगले दिन अचानक बाहर शोर सा महसूस हुआ। जब बाहर निकला तो जमीन थरथरा गई। मेरे सामने 100 से ज्यादा अजीब व गरीब मखलूकात खड़ी थी। उनके चेहरे ऐसे थे जैसे कोई ख्वाबनाक दरिंदे हों। एक मेरे करीब आया और मुझे फिजा में उछाल दिया। फिर अंधेरा। सुबह जब होश आया, मैं अपने कमरे में था। राशन मौजूद था, मगर कैसे, कौन लाया? मैं सकते में था। मगरिब के वक्त अजीब सी हंसी की आवाज आने लगी। मैंने कुरान की आयत पढ़ना शुरू की और तभी अब्दुल्ला दोबारा आ गया। मैंने उसे गले लगाना चाहा, मगर जैसे किसी तंदूर को छू लिया हो। मेरे हाथ चलने लगे। मैं पीछे हट गया। तब अब्दुल्ला ने कहा, अब वक्त आ गया कि तुम्हें सच बताना चाहिए। मैं इंसान नहीं, एक नेक जिनज़ादा हूँ। ये फार्म जन्नात के गांव पर आबाद है। तुमसे पहले जितने लोग यहाँ आए वो नेक नहीं थे। हमने इन्हें ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं किया, मगर तुम अच्छे इंसान हो, इसीलिए हमने तुम्हारी हिफाजत की। कल जो तुमने देखा वो खबीस जिन्नात थे। मेरे तो जैसे होश उड़ गए और फिर मैं बेहोश हो गया। आंख खुली तो मैं रियाद के एक अस्पताल में था। सामने मेरा कफील बैठा था,
मुझे शदीद बुखार था, दिमागी हालत भी बिगड़ गई। चंद दिन बाद मुझे पाकिस्तान रवाना कर दिया गया। ये कहानी सच्ची है, मगर इसे सिर्फ वही समझ सकता है जो तन्हाई, वीरानी और जन्नत के साए में जिंदा रह चुका हो। अगर आपने कभी सुना है कि हर दरख्त के पीछे कोई कहानी छुपी है, तो शायद वो खजूर के उन दरख्तों की कहानी हो जहाँ इंसान का साया भी अजनबी समझा जाता है। तो ये मेरी स्टोरी थी। उम्मीद है आपकी यूट्यूब फैमिली को पसंद आएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। तो बहुत शुक्रिया, आपने भी अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। स्टोरीज पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे मेरी स्टोरीज की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचाया करेंगे और आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और अगर आपने ये दो स्टोरीज अभी तक नहीं सुनी तो जाकर लाजमी सुनिएगा। अल्लाह हाफिज।